Good morning, very good morning. I hope all you are well and fine. So, students, today we will discuss two stories about flying. Already, part one we have discussed, and I hope you might have seen that video, old video, new video. And last year I have uploaded the same chapter video, and this year also I uploaded. But in the way of different. But today we will discuss about second part of this story. The second part of the story title is Black Aeroplane, and it is one of the mysterious story. But part one was the imaginary story, and this one is a mysterious story, and it is written by Frederick Forsyth, है ना, Frederick Forsyth. So as I told you, this is a mysterious story, and before beginning of this lesson, I would like to request you, if newly you are visiting my channel, please subscribe it and hit the bell icon. At the same time, forward it to your friends and your classmates. So then let us begin. So first of all, we will discuss the summary, because instead of reading whole lesson, we will complete the summary, and that would help us to understand the whole story. According to the summary, you can see that author flying his Dakota aeroplane. What author flies? Author flies his Dakota aeroplane. It was a time of 1 o'clock at night, according to his saying. उसके कहने के आधार पर टाइम अभी क्या हुआ था, 1 बज चुका था रात को. The author says that he was flying aeroplane at 1 o'clock at night. The situation was very clear and very calm and very quiet. Okay, no rain, no cloud, nothing else. When he looked to the sky, that was completely clear. The moon was coming up in the east behind him. Stars were shining in the clear sky above him. He was flying his old Dakota aeroplane over France back to England. He was dreaming of his holiday. He was looking forward to being with his family at the breakfast table. So यहाँ पे जैसे वो अपनी उड़ान भरना शुरू करता है, देखता है कि उसके पीछे ईस्ट बिहाइंड सन कमिंग होता है, मतलब उठ रहा होता है. जो स्टार से उसके पूरे सिर के ऊपर चमक रहे होते हैं, और ऐसे टाइम पर वो अपना ओल्ड डैकोटा को लेकर के फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ अपनी उड़ान भर रहा होता है, और अपने मन में एक ड्रीम, एक सपना वो देख रहा है कि अपने छुट्टियों के दिन के प्रति बस सुबह सुबह अपने परिवार के साथ पहुंच जाएगा ब्रेकफास्ट के टेबल में. ये एक सपना था उसको. कोई भी व्यक्ति अगर छुट्टी लेके घर जाता है तो अक्सर कुछ प्लान उसका दिमाग में चलता रहता है कि मैं अपनी छुट्टी को कैसे मनाऊं. बिल्कुल उसी तरह से ये अपनी छुट्टी को मनाने के लिए सोच रहा है. He called for Paris control. He decided to call Paris control. He then radioed it to it. He told it that he was on his way back to England. Paris control, dull knowledge edge. It advised him to turn 12 degrees west. So it was very good if someone is flying over the sky, or he wanted to inform that to the control room if there will be any problem, that the control room will able to help him. तो ये ऐसा ही होता है कि जब कभी कोई फ्लाइट में उड़ता है
तो वो कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता ही है, क्योंकि क्या पता कभी कोई समस्या हो तो कंट्रोल रूम में आकर के क्या करेगी, उसको मदद करेगी। तो जैसे वो कंट्रोल रूम को और अपना रेडियो ऑन करके बात करता है और अपने मार्ग के बारे में बताता है, और तभी पेरिस कंट्रोल रूम उनको सुनता है और एडवाइस दे के कहता है कि उनको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है। ये बात सुनने के बाद फिर वो ऐसा ही करते हैं। फिर होता क्या है कि वो देखते हैं सी स्टॉर्म्स क्लाउड्स। He duly turned to that direction. Everything was going well. Paris was about 150 kilometers behind him. Then he saw the storm clouds. They looked like a black mountain in front of him. He knew he could not fly up and over them. He didn't know for a moment what to do. That was a really very difficult time. Almost he is far from France, 150 kilometers. Now France is behind him. And he was thinking everything is going on very well. Suddenly he saw a storm cloud that looked like a black mountain. No idea what to do, where to go, how would handle this situation. जैसे आगे बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लगभग 150 किलोमीटर वो आगे आ चुका है फ्रांस से, फ्रांस उसके पीछे रह गया। तभी एकदम से कुछ स्ट्रॉम उसके सामने आते हैं, और ये जो स्ट्रॉम है एक काली बादल का पहाड़ की तरह उसके सामने आकर के रह जाता है। इसके चलते उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे करके अपने इस परिस्थिति से वो उभरेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे समय पर भी एक मदद का हाथ उसके ऊपर आता है। वो क्या आता है कि अब थोड़ी देर में हम उसको देखने जा रहे हैं। ग्रेट फ्राइंग प्रॉब्लम फेस, अब स्वाभाविक बात है, इट इज़ ऑब्वियस इफ वी आर इन द मिस्ट ऑफ ब्लैक क्लाउड, इफ वी कैन सी ahead what we supposed to do, no idea is there, no idea is there. Even if we want to go back, that is also impossible, that is also impossible. He decided to go back Paris, but he also wanted to get home, so he took the risk and flew into the storm. He could see nothing outside his aeroplane. Everything was black. The old aeroplane jumped and twisted in the air. He looked at the compass. It was gone. He tried to contact Paris control, but he couldn't contact it too. He was lost in the storm. Okay. There was not only one problem, but the problem was there. He was lost in that storm, because when he tried to contact, he couldn't contact to Paris. His radio has been broken down, his compass has been broken down. जब वो कोशिश करता है कि पेरिस की तरफ पीछे चला जाए, वापस चल जाए, ये भी संभव नहीं हो पाता है। किसी भी तरह से उसको घर पहुंचना चाहिए था। रिस्क लेके वो आगे बढ़ रहा होता है, कुछ भी नहीं दिखता है उसको, और सब कुछ ब्लैक ही दिख रहा है। ऐसे टाइम पर उसका जो एरोप्लेन है जंप हो रहा है, एयर में उछल रहा है। तो वो अपनी कॉम्पास को देखता है, वो कॉम्पास पे टूटा हुआ है, क्योंकि कॉम्पास ही है जो दिशा निर्देश करता है। बाद में वो कोशिश करता है कि पेरिस को कांटेक्ट करने के लिए
लेकिन नहीं कर पाता है क्योंकि उसका जो रेडियो है वो भी ख़राब हो गया था। तो ऐसी दशा में एक दूसरा एरोप्लेन उसके सामने दिखता है, एक दूसरा एरोप्लेन उसके सामने दिखता है। व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग एंड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ और टू एस्केप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इन इवेंट्स और इंसिडेंट, somehow he was trying, but there was no hope at all. But he saw another aeroplane in those clouds. Then in the black aeroplane, he saw another aeroplane. It had no light on its wings. He could see it flying next to him in the storm. He was glad to see another person. He was saying to follow him. The author thought he was trying to help him, so he followed him. He flew for half an hour. He had fuel only to last for 5 or 10 minutes. He began to feel frightened. Then he started to go down. So while he was struggling, जैसे वो इस तरह का समस्या का सामना कर रहा था, तभी एक दूसरा एरोप्लेन उसको दिखता है जिसका विंच में लाइट नहीं था। वो बिल्कुल क्लियरली देखता है कि इस स्ट्रॉम में भी वो फ्लाइंग उड़ान भर रहा है और बिल्कुल उसके बगल में है। जैसे उसको देखता है, एक दूसरा बंदा को देखता है, तब वो बड़ा खुश हो जाता है। वो होना स्वाभाविक है। जब आप विपत्ति में होते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अकेला हूँ और मेरे पास कोई नहीं है, तब आप किसी न किसी रूप से किसी दूसरे को देखते हो तो आपको खुश होना ही होगा, और ये स्वाभाविक है। तो अब उसको समझ में आ रहा है कि जो बंदा उसके आगे आगे चल रहा है, उसके साइड से होते हुए आगे आगे चलता है, उसको इशारा करता है कि भाई तुम मुझे फॉलो करो। अब इस एरोप्लेन का बंदा जो है, डाकोटा एरोप्लेन का बंदा जो है, वो समझ जाता है कि हाँ वो मुझे हेल्प करना चाहता है और उसको पीछे पीछे होकर के वो चलता है। जैसे पीछे पीछे होकर के लगभग हाफ एन आवर चल जाता है और जाने के बाद देखता है कि उसके फ्यूल जो है अब ख़त्म होने के कगार पे है। अब वो स्थिति देख कर के डर लग गया। पहले तो उसका कंपास ख़राब हो गया और उसका रेडियो ख़राब हो चुका है, अब ईंधन ख़त्म हो रहा है, ऊपर से ये तूफ़ानी रात, बड़ा डर सा महसूस होता है। और इस स्थिति में वो धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरता है। अब जैसे नीचे की तरफ उतरता है तो एक अच्छी बात हो जाती है जो हम आगे देखेंगे। Saved and lands safety. Suddenly he saw that he was on the runway. He looked for his friend in the black aeroplane. He wanted to thank him, but the sky was empty. He went into the control tower. He asked a woman where he was. She looked at him strangely and then she laughed. She told that there was no other aeroplane except his. जैसे थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट होता है उसका फ्यूल ख़त्म होने का, और तब वो नीचे आ जाता है। जैसे नीचे आता है तो आँख उठा करके देखता है तो अभी वो कहाँ पर है? रनवे पर है। रनवे मतलब जिसके ऊपर फ्लाइट रन करता है और ऊपर उड़ान भरता है, या तो फिर ऊपर से नीचे आकर के जहाँ पे रुकता है और थोड़ी दूर तक वो बस की तरह चलता है, उसे रनवे कहते हैं। और इस रनवे में वो आ चुका है। जैसे रनवे में आता है, गाड़ी को, फ्लाइट को रोक लेता है। रोकने के बाद उस व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए चाहता है जो ब्लैक एरोप्लेन में है, उसे धन्यवाद देने के लिए इधर उधर ढूंढता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। ऊपर से स्काई जो है ये कम्प्लीटली एम्प्टी हो चुका है। इसमें और कोई तूफान का, कोई बारिश का, कोई चीज़ का कोई भी अंदेशा दिखने को नहीं मिलता है। फिर वो कंट्रोल टावर में पहुंच जाता है। एक महिला होती है वहाँ पे, उसको बोलती है वो व्यक्ति कहाँ गया।
तो वो महिला चौंक जाती है, बड़े अजीब तरीक़े से उसको देखती है और मुस्कुराती है और कहती है यहाँ कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है, आज रात के टाइम पर आपके ही फ्लाइट उड़ रहा था, उसके अलावा आसमान में दूसरा कोई फ्लाइट नहीं था। बड़ी चौंकाने वाली बात है, बड़ी आश्चर्य बात है कि यहाँ और कोई भी दूसरा फ्लाइट नहीं है, तो फिर वो था कौन है? शायद कोई देवदूत भी हो सकता है। Author's great surprise, the author was wonderstruck to hear it. He wondered who had helped him to arrive there. He was without compass or a radio. He did not have enough fuel also in his tanks. Who was the pilot on the strange black aeroplane फ्लाइंग इन द स्ट्रॉम विदाउट लाइट? फिर कौन हो सकता है बिना लाइट के इस ब्लैक जो क्लाउड है उसी क्लाउड में मुझे हेल्प करने वाला? ये सोचता ही रह गया, लेकिन जवाब उसको कुछ भी नहीं मिल पाया। तो इसीलिए इसको कहा गया एक मिस्टीरियस और एक रहस्यमय स्टोरी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन आंसर इन्हीं में से ही करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये 5 क्वेश्चन को क्लिक कर दें, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा ये 5 क्वेश्चन, और उसके बाद इसके 5 जो आंसर है, पहले आंसर नंबर 1 और 2 को आप स्क्रीनशॉट लें। मैं थोड़ी देर आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, फिर उसके बाद आपको 3 से लेकर के 5 तक और एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये 5 क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। ये एक्सरसाइज को भी आप ध्यान से पढ़ें, उसको भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने। फिर उसके बाद हम उसका आंसर्स को इस प्रकार से करते हैं। ओके, इसका आंसर को इस प्रकार से करते हैं। ये आंसर है उसका, जो सारणी के ऊपर देखा उसका ही आंसर है। फिर उसके बाद ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। सब स्क्रीनशॉट ले लेकर के आप उसको पूरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका आंसर को भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ओके, आपको कैसा करना है? वी नो, ये क्वेश्चन नंबर 3 में समझा देता हूँ। वी नो दैट द वर्ड फ्लाई ऑफ बर्ड और इंसेक्ट और मीन्स टू मूव थ्रू एयर यूजिंग विंग्स। Take the words which have the same or nearly the same meaning. जो नज़दीकी मीनिंग से और जो एक दूसरे से मिलता है उन्हीं को आप क्या करें, टिक करें। तो वहाँ पे ऑलरेडी आंसर्स में दिया हुआ है, उन सभी को मैच कर करके आपको टिक करते, जो उड़ान भरने की तरफ को इशारा करता है। The words which have the same or nearly the same meaning as fly are as follows: swoop, fleet, float, dart, soar, hover, sail, skim, glide, flutter। ये सभी उड़ने के अर्थ को बताने वाले शब्द हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फ्रेज गिवन अंडर कॉलम ए विद द मीनिंग गिवन अंडर कॉलम बी। तो ये फ्रेज है, उसको मैच कर ले। अब इसका एग्जैक्ट मैचिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर समझाने का ज़रूरत नहीं है, बस आपने समझ लिया होगा इसको, क्योंकि लेसन समझाया हुआ तो क्वेश्चन आंसर भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज यहीं पे अपनी क्लास को रोकते हैं। थैंक यू, may God bless you, have a good day।